चलें। सो हमने एक बड़ी मजे की काम करनी है, और मजे का काम ये करना है, सो राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट। ये ना तुम लोग थोड़ा सा, हादी, हसन और जैन, काइंडली आप अपनी वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें सारे तीनों के तीनों। हाय सर, हाय हाय हाय। ये कौन कौन बैठा है? ये तीनों साथ बैठे हुए हैं आज? नहीं, दो बैठे हुए, दो। चलो ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है? हमने करना है कि राइट ए प्रोग्राम विच, डबल ट्रबल है। चलो ठीक है। अच्छा, विच राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स एन इंटीजर एज एन इनपुट, एज इनपुट। एक मिनट एंड प्रिंट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? I don't know. So for example, let me tell you what is that. So how many of you know what is a prime number? Not me. Not me. Ibrahim, you don't know that? No, I don't know. Okay, so what is a prime number? So let me tell you what is. So, Sir, can I tell, sir? yes, you can tell. I know what the prime number is. A number that can only be divided by itself or one. Yes. That So, I already know. That tell me. I already know. That you already know. Very nice. So, for example, can you tell me 7 is a prime number or not? Yes, sir. 7 is a prime number. Okay. And what about 9? Yes, नहीं sir, ये नहीं है. Is not a prime number. Okay. By the way, It is a consonant. it's Yeah, called compound number. Compound. So compound is a number which is a multiplication of two different prime numbers. Okay, at least two. It could be more than two, or actually two different. It's not necessarily two. At least two prime numbers. Multiplication से बनता है. ठीक. Okay. What about 49? Okay. What about 25? So, but 25 is not a big number. Sir. जी. Hasan? Sir, ये sir 9 composite number नहीं होगा? 9 is not composite कहते हैं, compound कहते हैं. Sorry, composite कहते हैं. You are absolutely right. Composite. मैं भी यही सोचा था कि compound कहाँ से आ गया. Sorry about this. It's composite. I'm really sorry about it. It should be composite. 25 is a composite. Yes, it's a composite number. Okay. So what about 25? 25 is not a prime number. Is not a prime number. Okay. And actually it is a composite number. Okay. But what about 1? Composite. No. 1 is not a prime number. Not prime and not counted. Okay. 1 is not counted in this prime composite things. That doesn't make sense. मैंने पढ़ा हुआ है prime numbers होते हैं which have two और which have two क्या कहते हैं factors और बाकी सारे composite होते हैं. नहीं, 1 composite नहीं होता. Okay. 1 is neither a composite number, not a prime number. जी अभिया. एक मिनट बेटा, हाजी बोले, अभिया बोले. जीरो भी तो नहीं है ना प्राइम नंबर yes, ना जीरो भी. एक्चुअली 1 से नीचे जितने भी हैं वो कंपोजिट नहीं है. तो मैं तो इस लाइन को बात से हम जिन नंबर्स की बात करते हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो लेस देन if a number is less than 2. okay, composite की स्पेलिंग भी ठीक नहीं है. you are absolutely right. Composite. मैंने क्या लिखा हुआ है? Composite. Yes, you're right. सर आप लिख रहे हैं composite. Composite. Yes, spelling. Is it fine? Is it fine? Yes, sir. ये सही है. Okay. Sorry about this. ठीक है. अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैंने एक नंबर के बारे में बताना है कि वो composite नंबर है या प्राइम. That's what I want to do. Okay. अच्छा, by the way, so पहले मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो मुझे बताया कि एक नंबर composite नंबर है या नहीं. ठीक है. अच्छा, एक और मजेदार बात, एक और let's wait for a while. और मैं आज बहुत मजेदार काम करूंगा. प्राइम, आज जिस तरह पिछला लेक्चर रैंडम नंबर्स के बारे में था, this lecture is all about the amazing things about prime numbers. Okay. मैंने वो पढ़ी हुई है. एक मिनट इब्राहिम,
आपने जो चीजें मैं बता रहा हूँ बड़ी मजे की चीजें होंगी, वो आपको नहीं लगेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले वेट करते हैं। अच्छा, आज मैं एक और भी मजेदार काम करूंगा, और मजेदार काम क्या करूंगा, वो ये करूंगा कि मैं आज एक बड़ी जरूरी चीज करने लगा। और वो जरूरी चीज ये है कि इमेजिन करें कि मैं आपको एक काम करता हूँ कि लेट्स से मैंने एक एक्स एक नंबर लिया और मैंने कहा कि कोई मुझे बता दे। सो फॉर एग्जांपल एक्स एक मेरा नंबर है जिसको मैं 10 कह देता हूँ। ठीक है, और फिर मेरा एक और नंबर है, लेट्स से एक्स नहीं, इसको मैं वाई कह देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से 21। फिर मेरा एक और नंबर है, लेट्स से जी, ये 20। ठीक, फिर मेरा एक और नंबर है जिसको मैं ए कह देता हूँ, और वो लेट्स से 29। ठीक। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताना, मैंने इस नंबर के बारे में भी चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, इस नंबर के बारे में भी चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, इस नंबर के बारे में भी चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, इस नंबर के बारे में भी चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। ठीक है, इसको इनपुट बना है, क्या करें? इसको इनपुट बना है। नहीं इनपुट नहीं, लेट्स से इनपुट नहीं, इनपुट भी ले सकते हैं लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट इनपुट। लेट्स से एक पीस, ये मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मैं बना रहा था, यहाँ मुझे जरूरत पड़ी इसकी कि भाई मैं चेक करूँ कि कॉम्पोजिट है या प्राइम नंबर है। फिर मुझे यहाँ पे जाके एक और जगह जरूरत पड़ी कि कॉम्पोजिट है या प्राइम है। फिर मेरे यहाँ पे जाके एक और जगह जरूरत पड़ी कि कॉम्पोजिट है या प्राइम है। अब मेरी बात सुने, ये जो पीस ऑफ, ये जो मेरे एक्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो कॉम्पोजिट है या प्राइम नहीं है, वाई के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो कॉम्पोजिट है या प्राइम है, जी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो कॉम्पोजिट है या प्राइम है, ए के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो कॉम्पोजिट है या प्राइम है। ठीक है, अच्छा, डू यू अग्री कि अभी तक जो हमने कोडिंग की है उसमें इसका कोड हमें अलग लिखना पड़ेगा, इसका कोड हमें अलग लिखना पड़ेगा, इसका कोड हमें अलग लिखना पड़ेगा, और इसका कोड हमें अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ना हम एक काम करें, और काम ये करें कि एक ऐसा करते हैं, एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। तो इमेजिन द फॉलोइंग कि हम किस तरह की चीज करना चाहते हैं। सो इमेजिन द फॉलोइंग कि अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाता हूँ और इस मॉड्यूल का मैं नाम रखता हूँ, तो लेट मी टेक इसको मैं कह देता हूँ प्राइम, बल्कि इसको प्राइम भी कह सकते हैं और इसको कॉम्पोजिट भी कह सकते हैं। सो इसका मैं एक मैं मॉड्यूल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इस प्राइम। ये मेरा पीस ऑफ मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होता है, अभी मैं बताता हूँ मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल विल बी ए पीस ऑफ कोड जिसको कोई इनपुट जाएगी और इस इनपुट की बेस पे वो कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, वो कुछ भी रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कैंडी बार। जैसे मैं भी बताता हूँ क्या हुआ, जैसे मैं आपको मजे की बात करता हूँ, आपको याद है इनपुट एक मॉड्यूल है, ये जो इनपुट इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते रहे ना, इनपुट एक मॉड्यूल है जो क्या कर लेता है, पैरामीटर में एक मैसेज लेता है, जैसे हम लिख देते हैं एन कॉलिंग, है ना। और ये जो इनपुट इंस्ट्रक्शन है, ये जो एक्चुअली मॉड्यूल लिखा हुआ है, हमें नहीं पता, हमने कभी इनपुट इनपुट कैसे इनपुट लेता है ये हमें पता है आज तक? हमें सिर्फ इतना पता है कि हम यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, और यहाँ पे अगर मैं कह दूंगा लेट्स से कि n इज इक्वल टू दिस, तो जो भी मैं कंसोल पर राइट करूंगा, तो जो इनपुट का में लिखा हुआ मॉड्यूल है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता। ये बेसिकली एक इनपुट का एक मॉड्यूल है, इनपुट का एक मॉड्यूल है। ठीक है, इसके अंदर पीस ऑफ कोड यानी वो कैसे कंसोल से वो वेरिएबल उठा के लाता है और उठाकर जो रिटर्न करता है, वो क्या रिटर्न करता है, वो वैल्यू जो हमने कंसोल पर डाली होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एंटर किया 1 2 3, तो n में क्या आ जाता है, 1 2 3 आ जाता है। ये बात समझ में? तो अब हम एक बड़ा मजे का काम करते हैं, और अभी मैं आपसे बहुत सारी एक्सरसाइज भी कराऊंगा कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल को अभी आप सिर्फ ये समझें, बल्कि मैं इधर थोड़ा सा कुछ आपसे बातें करता हूँ कि हम बहुत सारे मॉड्यूल बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने मॉड्यूल बनाता जाता हूँ और आप मुझे हेल्प करते जाए कि अगर मैंने ये मॉड्यूल बनाना हो तो उसमें क्या इनपुट मिलेगी और ये हमें क्या आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मुझे आपने थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी है।
अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब और से मुझे बताइएगा, आपने ना आराम से सोच समझ के जवाब देना, जल्दी जल्दी नहीं करनी, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि इस मॉड्यूल को इनपुट क्या मिलेगी और आपके ख्याल में इस मॉड्यूल की आउटपुट क्या होनी चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ आपने मुझे ये बताना है, ठीक है। सो इमेजिन कि मैं अगर आपको कहूं कि मैंने एक मॉड्यूल लिखना है, जिस मॉड्यूल का नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए इसका? इसका नाम होना चाहिए पावर, जो कुछ इस तरह का काम करते, क्या कि इसको एक x मिले, ये लेट से 2 मिले, और एक y मिले जो कि लेट से 3 है। तो ये क्या रिटर्न कर दे, ये रिटर्न कर, ये कंप्यूट करें अंदर 2 to the power 3। 2 to the power 3 बेटा कितना होता है? 8 शायद 2 to the नहीं power 3 का मतलब है 2 into 2 into 2। अब ये बताएं 2 into 2 into 2 कितना होता है? सर 8 होता है। तो ये बेसिकली 8 रिटर्न कर देगा, 8 ठीक है, ये 8 रिटर्न कर देगा। अच्छा हादी और हसन, सॉरी जैन, आप अगर दोनों साथ बैठे हुए ना, तो आप ऐसे एक माइक ऑन रखें, दूसरा ना ऑन रखें, ठीक है। चलिए शाबाश। अच्छा अब देखिए, तो हमने ये मॉड्यूल लिखना है, इसका नाम है पावर। अब आप मुझे बताएं कि इस पावर को कितनी इनपुट पास होंगी, इसने ये कंप्यूट करना है, बेसिकली इसने कंप्यूटर करना है, इसने x की पावर y कंप्यूट करनी है। तो मुझे बताएं कि इसको क्या पैरामीटर में पास होना चाहिए, यानी हम इस पावर का जो मॉड्यूल लिखेंगे, ये क्या इनपुट में लेगा और ये क्या रिटर्न करेगा, ये बताएं। रिटर्न बेशक हम यहां से एरो लगाना चाहें तो यहां लगाना चाहें, यहां लगा दें, यहां लगा दें, ठीक है। अक्सर लोग यहां लगाते हैं। जी बताएं, इसको क्या इनपुट में पास होगा और ये क्या रिटर्न करेगा? वैल्यूज इनपुट में पास होंगी, कौन सी? x और y की। x और y की। और ये 2 और 3 नहीं कहना आपने, आपने x और y कहना है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू में चेंज कर सकता हूं। तो इसको इनपुट में पास होगा x और y, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू कंप्यूट करके, ये नहीं बल्कि ये वैल्यू कंप्यूट करके, ये वो जो भी वैल्यू होगी, ये जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से मैं v कह देता हूं उसको, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको सबको? यस। ठीक है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये, अगर हम ये मॉड्यूल बनाने में कामयाब हो जाएं, तो मजेदार बात ये है कि हम सिर्फ ये लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर, और यहां लिखेंगे लेट्स से 2 और 3, और यहाँ पे हमने लेट्स से t लिख दिया, और फिर हमने एक और लिखा ये u, और यहाँ पे लिखा पावर, एक मिनट, और यहाँ लिख दिया लेट्स से 3 to the power 4। तो बताएं, हमने देखे, अब मजेदार बात क्या है, हमें दोबारा कोड क्या लिखना पड़ा इन t की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए और u की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए? नहीं। यहां पर क्या होगा, यहाँ पे t में वैल्यू क्या आएगी बताएं मुझे? 2 to the power 3 बेटा कितना होता है? 2 to the power 3 कितना होता है? सर 8 8 होता है। और 3 to the power 4 कितना होता है? 3 to the power 4 कितना होता है? 81। ओके राइट, because 3 to the 9, 3 to the power 2 is 9, and there are 4 of them, so 9 multiplied by 9 is 81। okay, and the nice thing about this, तो let's say मैं एक और v बनाता हूँ, और मैं लिखता हूँ पावर, और यहाँ लिखता हूँ लेट्स से आई डोंट नो 4 to the power 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? The nice thing is कि हम ये हो जाएगा 64। ठीक है? Does it make sense? So the nice thing about this module writing is कि now I can call it, and anywhere जब भी हमें उस पीस ऑफ कोड की जरूरत है, हम वो इनपुट में उसको पास करेंगे, और वो उस इनपुट के हिसाब से वो वैल्यू निकाल के ले आएगा। ठीक है? This is a beautiful idea. This is a perhaps one of the most finest idea in generalization. Okay? So before I move forward, let me ask you different questions. अच्छा, मैं आपको बताऊंगा एक क्वांटिटी, आपने बताना है
कि ये क्वांटिटी आपके ख्याल में क्या इनपुट लेगी और क्या आउटपुट करेगी। ठीक है, कोई एतराज तो नहीं किसी को? मैंने क्विज शुरू करने लगा हूं। आपने बताना है उसका नाम क्या होना चाहिए और आपने ये बताना है कि इसको क्या इनपुट में पास होगा और ये क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा करते हैं, एक और मॉड्यूल बनाने का आपको कहते हैं। सो एक मॉड्यूल बनाएं जो ये काम करे। क्या काम करे? जो कि एक नंबर इनपुट ले और वो बताए कि वो प्राइम है या नहीं है। तो पहले तो बताएं इसका नाम क्या होना चाहिए। सर प्राइम नंबर फाइंडर। सो इज प्राइम। इज प्राइम। ठीक है, इसको इनपुट में क्या पास होगा? एक नंबर पास होगा या दो नंबर पास होगा या 50 नंबर पास होंगे, कितने नंबर पास होगा? सर एक। सिर्फ एक नंबर पास होगा, जो या 7 होगा या 9 होगा या 25 होगा या 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम क्या कह देते हैं? एन। एक्स भी कह सकते हैं, जो मर्जी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही दफा एक ही नाम पे। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा बताएं? आपने सुना है, आप ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हाँ या ना कहनी होती है। आपके मामा पापा ने कभी कहा है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बताएं आपको हाँ या ना में आंसर देना है? कभी आपने सुना है? पापा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा वो कुछ उठाया हो हाथ में, हाँ मुझे बताओ तुमने हाँ कहना है और ना कहना है, बस। तुमने किया था या नहीं? ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ना। नहीं तो नहीं नहीं किया। मैं आपके बाबा से अभी बात करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज ये प्रैक्टिकल डेमो दें आपको। हाँ जी। नो नो, चलो जी, बात आप बड़े, मैं बताता हूँ नहीं नहीं आपको। सर, मैंने खुद सुना है सर, ये कह रहे थे। तो इसके बाद कह रहे होते हैं कभी बार। how dare you अच्छा, आप हमारे एक मेरी बात सुने बड़ी गौर से। हादी हटा दें, हादी कहानी हटा दें। अच्छा, जो जो सर आप कौन करके दिखाएं? अच्छा हादी प्लीज, अभी मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सब्र करें। ये बड़ी जरूरी बात है, ये एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है। तो हम जो इस प्राइम लिख रहे हैं, ये बेसिकली अब जो रिटर्न करेगा या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स भी बेसिकली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आप ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अरे बुलियन होता है, इसे बूलियन कहते हैं। ठीक है, आप मुझे एक और बताएं, मैंने एक और मॉड्यूल बनाना है और वो मॉड्यूल है फॉर एग्जांपल। अब आप मुझे बताएं इस मॉड्यूल में क्या पैरामीटर पास होंगे। ठीक है, ये आपने मुझे भी बताना है। ठीक है, इसको मैं एंटर दबा देता हूं। मुझे बताएं कि मैंने एक ऐसा मॉड्यूल बनाना है जो ये बताए कि एक नंबर इवन नंबर है या नहीं है। बताएं मुझे अब क्या होना चाहिए। सर इज इवन। इज इवन और ऑड। इज इवन, सर एक इज बताएं, इवन, एक बता सर दें, सिर्फ एक बता दें। इज इवन, इज इवन। ठीक है, अगला सवाल मैं ये करूंगा जो मुझे आपने मुझे कहा है। जी आप बताएं। सर एक इनपुट होगी। एक इनपुट होगी और यह करेगा, और इसको हम एन कह देते हैं। ठीक है, और ये इसके बारे में बताएगा क्या, सर ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं, एक और मॉड्यूल बनाने को मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा अब मैं आप थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। ठीक है, और सवाल ये है, गौर से देखिएगा, मुझे आपने बताना है कि एक प्रोग्राम लिखें जो ये बताए कि आप गौर से सुनिएगा, मैंने एक अगेन एक मॉड्यूल बनाना है जिसको हम यहां पर इसका बाय द वे इस मॉड्यूल का नाम हम रखेंगे, इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने एक मॉड्यूल बनाना है, थोड़ा सा गौर से सोचिएगा, जल्दी ना कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक मॉड्यूल लेना है जो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स इनपुट करवाए। ट्रायंगल समझते हैं ना? यस सर। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल जैसे ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और वो बताए कि ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है बताएं मुझे? ऐसी होती है ना, जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 होता है। 90। जिसमें एक एंगल 90 होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब ये आपको पता है? यस
वेरी गुड। तो मैंने अब बताया कि मैंने अब सवाल ये पूछा है कि मुझे इसको इनपुट कितनी मिलेगी, और ये बताया मुझे। अब मेरी बात सुनो गौर से, या तो वो बताया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसके सारे एंगल सेम होते हैं। जिसके सारे एंगल सेम होते हैं, और वो कितने होते हैं? सर 3। ये तो होते हैं, कितने होते हैं? सर क्या होती है वैल्यू? हर एक की 60। वैल्यू 60 होती है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। 180 के। इस तरह एक होती है जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसी सर तरह एक आइसोसेलेस। एक होती है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्या होती है? सर जिसके 2 एंगल सेम होते हैं। जिसके 2 एंगल सेम होते हैं। ये बात सुना? आप मुझे बताएं, लेट्स से, और इस तरह से एक और भी हो सकती है। एक और होती है जिसे कहते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। वो कौन सी होती है बोला? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये कौन सी होती है बताएं? एक ऐसी आइसोसेलेस होती है जिसमें एक तो एक एंगल तो 90 होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं? सर सेम होते हैं 45 वो 45। 45 सेम होते हैं। ठीक है, तो एक होती है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होती है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास, और बाद में एक ट्रायंगल और होती है, इसे कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। वो कौन सी होती है? जिसके कोई एंगल सेम नहीं होते। चाहे कोई एंगल सेम नहीं होता। ठीक है, बाद में एक और भी होती है जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और अक्यूट ट्रायंगल। वो कौन सी होती है? सर ऑब्ट्यूज। अब सर ऑब्ट्यूज होती है सर जिसके 90 से ज्यादा होते हैं, 180 से कम जिसका होते हैं। एक एंगल 90 से एक ज्यादा एंगल। होता है। यस सर एक एंगल। हसन, तुम ना सही बंदे नहीं हो। सर नहीं सर सर अक्यूट जो होती है वो 90 से उसका कम होता है। एक एंगल हाँ, जिसके एक एंगल। सारे एंगल, एक नहीं, सारे सारे एंगल। सारे एंगल सारे एंगल। ठीक है, आप तुमने उल्टा बता दिया। क्योंकि अगर एक एंगल भी 90 हो गया या 90 से ज्यादा हो गया, तो दूसरा अब 90 तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, अच्छा, ये काम मेरा मेरा नहीं है। अब मेरा जो असल में काम है, मैं पूछ रहा हूँ क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आपको नहीं भी पता, आपको बस ये पता लग गया कि ट्रायंगल्स की बहुत सारी अकसाम होती हैं, तो मुझे बताएं इसकी इनपुट क्या होगी इस फंक्शन। पहले मुझे फंक्शन का नाम बताएं ना, ये क्या होगा, इस फंक्शन का नाम सर क्या होगा? अच्छा जैन, जैन आपके बाबा को मैं कॉल कर दूंगा। अब आप ऐसे करेंगे तो आप ना सीरियसली नहीं बैठे हुए, मैं अभी अभी बाबा को कॉल कर दूंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ खुद भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और बाकी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे ना करें। आपको इस बात का जवाब देना चाहिए, बढ़ के जवाब देना चाहिए। आप क्लास खत्म हो, कर भी नहीं रहा था, ये मेरे कजन को ना करें ना बेटा, ना करें, ऐसे अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, आप मुझे बताएं बेटा कि बताएं इसका नाम क्या होना चाहिए। और इसका काम क्या है? काम ये है कि इसने बताना है कि ट्रायंगल की टाइप कौन सी है। तो मुझे बताएं, पहले तो बताना इस मॉड्यूल का नाम क्या होना चाहिए। सर ट्रायंगल। ट्रायंगल तो नहीं होना चाहिए। एक सवाल है सर, एक सर सवाल है वेज टाइप। ट्राय हसन हसन ने जवाब सर दिया। वेज हसन ट्रायंगल। हसन तुमने अब नहीं बोलना। हसन अब आपने नहीं बोलना। तो एक इसका नाम हसन ने बता दिया, इसका नाम रखते हैं ट्रायंगल टाइप। ट्रायंगल टाइप। अब मुझे बताएं इसे इनपुट कितनी पास होंगी। आप बताएं इनपुट कितनी पास होगी जी। इसको इनपुट कितनी पास होंगी पहले मुझे बताएं। सर मैं बताऊं। नहीं, अभी आप इधर हैं, इब्राहिम आप इधर हैं, अब्दुल्ला आर यू है? यस, जी बताएं, इसको इनपुट कितनी पास होंगी पहले मुझे बताएं। जितनी भी होंगी, कितनी होंगी? ट्रायंगल की कितनी कितनी जितनी भी होंगी, क्या कितनी होंगी जितनी पता होंगी उतनी पता होंगी। बेटा? नहीं इब्राहिम, मुझे नहीं पता। एक क्यों? अभी वन। एक क्यों? 1 क्यों? इसने इनपुट में क्या लेना है पहले मुझे बताओ। मैं बता सकता हादी, हादी बताना Yes. चाह रहा है। हाँ Yes. हादी बताता है। सर 3 3 होगी? क्या 3 होगी बताओ मुझे, कौन सी 3 होंगी? सर इनपुट होंगे क्या 3 इनपुट होंगी? कौन कौन सी इनपुट होंगे बताएं मुझे। सर 3, उसके जो 3 एंगल्स होंगे उसमें। 3 एंगल होंगे वो? यस सर। तो सिर्फ एंगल नहीं होते बेसिकली ना, आप अगर Right. गौर से देखें ना, ये मेरी बात सुनो गौर से, ये बेसिकली इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। यस सर। और जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना वो ये होते हैं, लेट मी कॉल दिस x1 y1, फिर ये होता है जिसे कहते हैं x2 y2, ठीक है, और फिर होता है x3
और y3। सो हर ट्रायंगल के 3 पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट 2 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये 3 पॉइंट्स हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 3 पॉइंट से बनते हैं। लेकिन जो इनपुट में हमारे यहां जाएगी वो क्या जाएगी? वो 3 इनपुट नहीं जाएंगी बल्कि वो 6 इनपुट जाएंगी। वाई 6 इनपुट? क्योंकि सर एक हर एक कोऑर्डिनेट जो है वो 2 चीजों से बनता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली इस ट्रायंगल टाइप के अंदर 6 पैरामीटर पास होंगे। क्या? x1 y1, x2 y2, x3 y3। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और आप मेरी बात गौर से सुनो, ये जो आउटपुट करेगा वो हमें कन्वेंशन बनानी पड़ेगी कि अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो लेट्स से 1 रिटर्न करेगा। अगर वो एसोसेलेस, सिंपल एसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो 2 रिटर्न करेगा। अगर एसोसेलेस, अगर सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, और हम एक और बना लेते हैं, अगर वो एसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो वो 4 रिटर्न करेगा, और अगर वो इसके अलावा कोई ट्रायंगल है तो वो 5 रिटर्न करेगा। तो ये हम एक कन्वेंशन बना सकते हैं कि इन 5 में से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये बात समझ रहे? डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों ये बातें की हैं। क्योंकि फंक्शन, ये जो फंक्शन बना रहे हैं इनको मॉड्यूल्स कह रहे हैं, इनमें कॉम्प्लिकेटेड इनपुट्स भी हो सकती हैं। ओके, सो लुक एट दिस। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा, ये आपने जल्दी नहीं करनी। ठीक है, सो नाउ इमेजिन कि मैंने एक और मॉड्यूल आपको लिखने को कहा है। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को लिखने का काम क्या है? सो लुक एट दिस, दिस फंक्शन यानी मॉड्यूल, मॉड्यूल, वैसे मॉड्यूल लोग कहते नहीं है, ज्यादातर लोग उसे फंक्शन कहते हैं, पाइथन वाले लोग इसे फंक्शन कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग इसको मॉड्यूल कहते हैं। तो दिस मॉड्यूल यानी फंक्शन should take which parameters? ठीक है, ये पैरामीटर्स क्या होने चाहिए ये आपने मुझे बताने, टू ड्रॉ ए सर्कल। आप बताइए, एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्या क्या होना चाहिए? सर Sorry? सर्कल, सर रेडियस। वेरी नाइस, एक तो उसका रेडियस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए अभी आप बताएं। क्या रेडियस, रेडियस में अगर किसी को बता दूं तो पता लग जाएगा आपको कहां पर ड्रॉ करना है? सर सर्कमफ्रेंस। नहीं, सर्कमफ्रेंस नहीं, सर्कमफ्रेंस तो नहीं, रेडियस से अगर आपने रेडियस बता दिया सर्कमफ्रेंस पता लग गया। Position and color. जी बेटा, Position and color. कलर उसका, अच्छा कलर को छोड़ देते हैं, वैसे कलर भी किया जा सकता है कि इसके किस कलर का ड्रॉ करना है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि कलर भी ले लेते हैं। और ये बताएं कुछ, मैंने position भी कहा था। क्या कहा था बेटा? कलर नहीं कहा था? मैंने कलर और पोजीशन, यस, कलर और कलर, पोजीशन, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर पोजीशन। पोजीशन क्या होती है मुझे अभी बताएं। जगह। हाँ तो क्या होती है बताएं ना, आपने स्क्रीन पर बताना है ना कि इस जगह पर जाके ड्रॉ करें। उसकी जगह। बेटा पोजीशन क्या होती है बताएं, क्या कोई इंटीजर होता है, क्या होता है, फ्लोट होता है, क्या होता है? अभी वैसे हमने डिस्कस किया था इधर ये सर्कल बना हुआ है। बेटा, ये बना हुआ है ना, आपने बेसिकली ये बताया होगा ना कि ये आपने मिटा क्यों दिया, दोबारा बनाएं, दोबारा बनाएं। लेट्स से ये आपने कहा कि ये सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, एक तो उसका रेडियस बताना पड़ेगा कि रेडियस कितना बड़ा है, साथ ही आपको ये भी बताना पड़ेगा क्या भला, क्या बताना पड़ेगा?
इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? सर ये होता है सर क्या अबिया सेंटर क्या कहते हैं इसको? अबिया इसे क्या कहते हैं? टर्टल कहते हैं। पोजीशन क्या, किसकी पोजीशन? सर्कल के किस चीज की पोजीशन कहते हैं इसको? सर सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर, इस चीज को कहते हैं सेंटर। आप मुझे ये बताएं, ये पोजीशन क्या होती है? इसे पोजीशन तो कहते हैं, लेकिन ये होती क्या है? सेंटर कहते हैं। बेटा क्या होता है सेंटर? क्या होता है? मैं ये पूछ रहा हूँ, सेंटर क्या होता है? कोई फ्लोटिंग वैल्यू होती है, कोई इंटीजर होता है, क्या होता है? सेंटर क्या होता सर है? इंटीजर। इंटीजर तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं, इंटीजर नहीं होता। सर फ्लोट होता होगा फिर। फ्लोट भी नहीं होता। सर आपने कहा था फ्लोट या इंटीजर। बिल्कुल गलत बात। अभी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या होता है? कोई इंटीजर होता है, कोई फ्लोट होता है, क्या होता है? सर पोजीशन होती है जहाँ से उन्हें ड्रॉ करना होता है। तो क्या होता है पोजीशन? क्या कहते हैं? मैं ये सब पूछ रहा हूँ, पोजीशन बेटा, पोजीशन क्या होती है? आपने तो उसका सर नाम बता दिया पोजीशन। मैं कह रहा हूँ पोजीशन होती क्या है? डेटा टाइप में क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, कोई इंटीजर होता है, क्या होता है? सर कोऑर्डिनेट्स। सर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्शन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो एक्स और वाई होते हैं। तो आप Yes. लिखेंगे सी एक्स और सी वाई। ओके, एंड सी एक्स क्या है? सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर वाई कोऑर्डिनेट। तो आप बताएं, ड्रॉ करने के लिए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करने का फंक्शन लिखेंगे तो उसे कितने पैरामीटर पास होंगे? सिर्फ सेंटर काफी नहीं है, ठीक है? एक तो आपको क्या भेजना पड़ेगा? सेंटर भेजना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सी एक्स और सी वाई। तीसरी चीज क्या भेजनी पड़ेगी? उसका रेडियस। ठीक है, देखो कितना बड़ा सर्कल बनाना है। ये बात समझ में आ गई? अब एक और बात का जवाब दे, मैं ये बंद कर रहा हूं दोबारा से। अब आप मुझे बताएं, एक और फंक्शन बनाना है, और फंक्शन बनाए कौन सा होना चाहिए? और फंक्शन ये है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि राइट ए फंक्शन which calculates the area of the rectangle। आप मुझे बताएं तो क्या पैरामीटर में पास हो? सर क्या होगा? मैं ये पूछ रहा हूं कि एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, यस सर। तो मुझे बताएं कि इसका नाम क्या होना चाहिए? सर एरिया 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 तो रेक्टेंगल एरिया रेक्टेंगल एरिया। हाँ, इसका नाम होना चाहिए रेक्टेंगल एरिया। सर इसका नाम इसमें एक मिनट, इनपुट। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना आपने, ऐसा नहीं बोलना। इसको हम रखते हैं रेक्टेंगल एरिया। एरिया एरिया। अच्छा आदि आपने भी बोलना, ठीक है? अब्दुल्ला आप बोले। आप मेरी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही आज। इसको पैरामीटर क्या पास होना चाहिए? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आर यू विद मी? तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? बताएं शाबाश, अभी आप बताएं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ये तो हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था, लेक्चर नंबर 2 में किया था। बेटा अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, बताएं। अगर आपने किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो उसकी क्या चीज हमें चाहिए होती है? बेस, उसकी बेस और हाइट। बेस और हाइट, बस। तो बेस और हाइट भी कहते हैं या लेंथ और विड्थ भी कहते हैं। तो एक्चुअली इसको पैरामीटर में दो चीजें पास होंगी, और एक को हम लेंथ कह देते हैं और एक को हम विड्थ कह देते हैं, या बेस और हाइट भी कह सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है?
तो बेसिकली, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा उसका एरिया, ठीक है, जो उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से बनेगा। ये बात सुने। अब आप मुझे बताएं कि मैंने इसको मॉडिफाई करना है, कि मैंने रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना, मैंने एरिया भी नहीं निकालना, मैंने वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालना है किसका भला, मैंने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आप मुझे बताएं मुझे क्या चीज चाहिए, या रूम कह लें। सर मैं बताऊं? नहीं हसन आप नहीं, आप मुझे अब्दुल्ला बताएगा। length cube लेंथ ऑफ द क्यूब एंड times length to the third power to no the नहीं, I'm asking there should be how many parameters I should be passing. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पास करनी पड़ेंगी, ये बताएं। सॉरी अब्दुल्ला, वी कांट हियर यू। length वेरी नाइस, आपको लेंथ भेजनी पड़ेगी, और बट शुड बी सेंड अदर देन लेंथ। power सॉरी, लेंथ के अलावा क्या भेजनी पड़ेगी? आई कुडंट हियर यू अब्दुल्ला। for the volume of the Yes. cube. Yes, for the volume of the cube. If you are unable to read it, just look at this. This is the sentence. Calculate the volume of the cube. So what are the parameters it should work on? Length and what? Just look at the room in which you are sitting. There's a length, and then there's a width, and what? If it's a cube, Height. width is not necessary. Oh, so you're saying it's a perfect cube. I thought you were talking about perfect cube. No, I'm not talking about perfect cube. I'm talking about is something like a Cuboid. A yeah, cuboid. cuboid. So maybe you're right, but I should have written this cuboid. Okay, so maybe the spelling is not correct, but so this should be length multiplied by width. multiplied by- But I don't think it's a perfect Yes, cube. and then it should be height. Okay, sorry Abdullah. Okay, I was wrong. Okay, so it should be cuboid. Excellent. So now you understand that these functions are important. And the nice thing about this function is that if you somehow can write a module separately, I can just call it and I will get the answer. Okay. And how to make those modules, that's the question. So let me make those modules. So let me make one module called def. So how to make modules? We call it def. Def means define. And let's say we will say, let me make a function of area rectangle. कॉलन लगाएंगे फिर। और आगे लगाएंगे, हमें लिखना पड़ेगा इसमें पैरामीटर क्या पास होते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या भेजा था, लेंथ एंड विड्थ। ओके, और यहाँ पे हम कॉलम लगाएंगे, जिस तरह फॉर लूप में कॉलम लगाया था, जिस तरह हमने इफ में कॉलम लगाया था, या जिस तरह हमने क्या किया था बताएं, जिस तरह हमने व्हाइल लूप में भी लगाया था। तो यहाँ पे हम जाकर सिर्फ ये लिखेंगे, रिटर्न क्या, length multiplied by w. Okay, and that's it. We have made our module. Okay. Sir? Yes. सर आज हमने फंक्शन पढ़ना था। Yes. नहीं, अभी हमने बेसिकली तो प्राइम नंबर्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है। ओ, So वो हम अभी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। एक मिनट रुक जाए बेटा, एक मिनट रुक जाए। ओके, अब आपने ये बना लिया और अब हमने यूज करना है, और यूज कैसे करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ लेट्स से 20, लेट्स से l इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 20, और मैं w इज इक्वल टू, या x और l कहना जरूरी नहीं है, मैं इसको a और b भी कह सकता हूँ, a और b, और लेट्स से किसी भी रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो 20 है, और उसकी जो विड्थ है वो लेट्स से 30 है, और अब मैंने कॉल करना है उसको, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट्स से t, यानी या रिजल्ट कह लेते हैं, r इज इक्वल टू, मैं कॉल करूंगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, और यहाँ मैं जाकर लिखूंगा a और यहाँ लिखूंगा b। ओके, सो व्हाट विल हैपन इज कि या इस सबसे पहली जो लाइन चलेगी वो लाइन नंबर 13 होगी,
फिर लाइन नंबर 14 चलेगी, उसके बाद ये लाइन चलेगी और उसमें ये ए पास होगा एल में और ये बी पास होगा डब्ल्यू में। सो एल में क्या पड़ा हुआ है, ए में क्या पड़ा हुआ है अभी यार, ए में 20 क्या पड़ा हुआ है 20 और बी में क्या पड़ा हुआ है 30। ये इन दोनों में रिसीव हो जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यू कंप्यूट होगी। सो लेट मी कॉल दिस आर, लेट्स से इसको हम रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम आखिर में एक लाइन लिखेंगे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो इस जगह पे क्या रिटर्न हो जाएगा, जो भी रिजल्ट में कंप्यूट हुआ होगा, जिस लाइन के साथ हमने रिटर्न लिखा होगा वो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं क्या, प्रिंट हम कर देते हैं एरिया ऑफ, याद है हमने पिछली क्लास में एफ लिखा था, एफ का मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद विड्थ, विड्थ में हम लिख देते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी विड्थ और यहाँ लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये है हमारी लेंथ और यहाँ लिख देते हैं विड्थ विड्थ, ठीक है। तो लेंथ ये है, विड्थ ये है, is और यहाँ पे जाके लिखते हैं आर, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हम चलाते हैं इसको, इसको हम डीबग पॉइंट से चलाते हैं। So let me execute the program. ओके सो ये देखिए ये एग्जीक्यूट, ये बन गया फंक्शन। अब मैंने ए बना लिया, ए यू कैन सी दैट ए बन गया, बी बना दिए, बी में 30 आ गया। एंड अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं F11 प्रेस करूंगा। कितना प्रेस करूंगा, नेक्स्ट लाइन के लिए हम F10 प्रेस करते थे ना, लेकिन अब क्योंकि मेरे यहाँ पर एक मॉड्यूल कॉल हो रहा है तो और मैं उस मॉड्यूल में जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूंगा F11। क्या प्रेस करूंगा, F11। अगर मैंने F10 प्रेस कर दिया तो ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका मतलब है वो मॉड्यूल पूरा पूरा चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने देखना है इसके अंदर तो मैं F11 प्रेस करूंगा। यू कैन सी दैट ये अंदर गया है और देखिए इसमें एल में क्या वैल्यू आई है, 20 से वही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ए में भेजी थी। और सिमिलरली डब्ल्यू में क्या वैल्यू आई है, जो मैंने यहाँ पे बी में भेजी, ठीक है। तो ये देखें ये यहाँ पे कंप्यूट हुआ, रिजल्ट में क्या वैल्यू आ गई, रिजल्ट में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी 600 हो गई। ये रिटर्न हुआ, जैसे ही रिटर्न हुआ आर में वही वैल्यू आ गई जो उसने रिटर्न की थी, ठीक है। और अब हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, अब प्रिंट करेंगे तो ये देखें जी हमारी वैल्यू, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद लेंथ 20 एंड विड्थ 30 इज 600। सर F11 को दोबारा पूरा ये भी फिट कर सकते हैं, F11 से क्या कर सकते हैं, के अलावा यहाँ भी फिट कर सकते हैं। तो यहाँ था वो बेटा यहाँ पर ना, अगर आप एक और तरीका भी होता है और वो तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर F5 दबाऊं और मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं, ठीक है। और यहाँ पहुंच के देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं ये यहाँ पे इसने हाईलाइट किया है इब्राहिम ने, ये यहाँ पर इसे कहते हैं स्टेप इनटू। और इसके साथ भी आप देख सकते हैं आपको F11 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली जाएंगे तो उस फंक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट सेक्शन करें, स्टेप ओवर करें और देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट कंप्यूट हुआ और यहाँ पे रिजल्ट आ गया और हमारा कंसोल पर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप स्टॉप बंद करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम ऐसा करते हैं, मजेदार काम करते हैं सर। एक मिनट रुक जाए, ठीक है। अच्छा अब हम एक मजे का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये हमें ना मॉड्यूल लिखना आ गया। अब हमने मॉड्यूल लिखना था किसका भला, हमने लिखना था एक मॉड्यूल जो कि हो इज प्राइम, और हमने क्या कहना है, इसको पैरामीटर में पास हो रहा है एक्स, बल्कि एक्स नहीं करते इसको एन कह देते, और ये इस नंबर के बारे में बताया कि वो प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो प्राइम का नंबर चेक करने के लिए क्या तरीकाकार है बताएं जल्दी। सर हम इफ यूज करेंगे, बिल्कुल if यूज use कर करेंगे, सकते तो सर तो हम इफ भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, जैसा कुछ लगे। सो ये इस तो फिर हम इफ यूज तो करेंगे बेसिकली if use- एक मिनट जो हसन इधर, ठीक है। अच्छा ये पहले मैं इस प्राइम कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर हसन आप लोगों को बोलने की इजाजत है, आप लोगों ने ये किया हुआ है सवाल,
तो आई जस्ट वांटेड टू रिफ्रेश। तो इस प्राइम जो जो इन्होंने नहीं किया होगा, इब्राहिम ने नहीं किया होगा और अब्दुल्ला ने नहीं किया होगा और अबिया ने नहीं किया होगा। चलिए आप देख लेते हैं। आपने इस प्राइम अगर लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? इस प्राइम को लिखने का बेटा तरीका क्या है? अभी आपको समझ में ना आया तो आपने बोलना है, अब्दुल्ला आपको भी समझ में ना आया तो आपने बोलना है, ठीक है? और इब्राहिम आप ही थोड़ा सा टेंटेटिवली बोलिए। प्राइम नंबर को चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल मेरा एक नंबर है n और उस n में कुछ भी पड़ा हो सकता है, बट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि n में पड़ा हुआ है, लेट्स से n में पड़ा हुआ है 25। तो हमने क्या करना है? हमने चेक करना है कि 25 जो है वो एक से तो वो हमेशा ही पता है, हमें पता है डिवाइड होता है, और हमें ये भी पता है 25 से भी वो डिवाइड होता है, ठीक है? तो व्हाई नॉट हम एक काम करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं और चेक करते हैं क्या ये नंबर जो 25 है, अब यह आप देखें क्या ये नंबर, एक हम डी लेते हैं उसको हम चेक कर, पहले उसके अंदर डू में 2 रखते हैं, देखते हैं क्या डी इसको डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे काउंट कर लेते हैं। काउंट का मतलब क्या? काउंट, एक काउंट पर रखते हैं जिसमें, याद है ना पिछले लेक्चर में क्या किया था, काउंट्स रखे थे, जितनी दफा 2 आ रहा था उसमें हम इंक्रीमेंट करते जाते थे। इसी तरह बट वी कैन डू इज कि हम एक काम करते हैं, हम काउंट करते हैं कितनी दफा ये नंबर n जो है वो डिवाइड होता है, 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, और करते करते हम 24 यानी एक नंबर कम तक जाते हैं, और हम कहते हैं इनमें से किसी एक में भी डिवाइड अगर हो गया, यानी हम डिवाइड करेंगे और अगर डिवाइड हो जाएगा तो हम काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे, और लेट्स से काउंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई तो इसका मतलब क्या है? अभी अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर, तो मैं ये करूंगा, देखिए गौर से मेरी बात सुनिए, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक वाइल लूप लिखेंगे, और वाइल लूप में हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी की वैल्यू शुरू में 2 होगी, और हम कहेंगे वाइल डी इज लेस देन और इक्वल, लेस देन बल्कि लेस देन n, ओके? अच्छा 2 से हमने क्यों स्टार्ट किया, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 पहला ऐसा प्राइम, 2 हमारा वो नंबर है, नहीं ये वजह नहीं है। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने बताया 1 से तो वो डिवाइड होता ही होता है, हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड तो होता ही होता है, और हर नंबर n से भी डिवाइड होता ही होता है। तो हम ऐसे करते हैं, डिवीजन जो शुरू करते हैं वो 2 से शुरू करते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आई? या अगर आपने ये भी करना है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसा करें 1 से शुरू कर दें, ठीक है? चलिए ऐसे करते हैं, 1 से शुरू कर लें पहले, फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं इसको 1 से, और ऐसे करते हैं 1 से लूप लगाते हैं, और 1 से लूप लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू n तक का, और यहां लिख देते हैं d प्लस इक्वल टू 1, और यहां चेक करते हैं कि हमारा जो नंबर n जो दिया हुआ है क्या वो d से डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होता है तो हम एक काउंट का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है? और काउंट का वेरिएबल मैंने कहां बनाया होगा? काउंट का वेरिएबल मैंने यहां बनाया होगा जिसकी शुरू में वैल्यू 0। तो अगर ये वाइल लूप पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और इस काउंट की वैल्यू क्या हो तो इसका मतलब है वो प्राइम है, वरना वो कॉम्पोजिट है। बताएं जी। सर काउंट की वैल्यू आप नहीं बताएं, 2, आपने बताना। ठीक है सर। अब्दुल्ला आप बताएं, या इब्राहिम आप बताएं। सर अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ये आपने प्रोग्राम समझ में आ गया इसका? ये मैं आपके सामने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो भी मैंने कोड लिखा है, ये मैंने कोड लिखा है, इसको ना उठा के यहाँ से मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है? और इसको भी बेशक यहाँ से उठा लेते हैं, और इसको भी उठा के यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ठीक है? तो आप ये आपको कोड नजर आ रहा है ना? ये मैं रेड मार्जिन कर रहा हूँ, इस कोड को देखना है आपने, ठीक है? ये रेड वाला कोड है। हमने क्या किया, हमें n एक इनपुट में मिला, तो हमारा मॉड्यूल क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमारा जो मॉड्यूल है, ये हमारा मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में जो इनपुट पास हुई है वो क्या पास हुई है? n पास हुई है। और अब मैंने यहाँ पर एक कोड लिखना है कि n पास हुआ है, काउंट को मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया, d को मैंने 1 किया, d इज लेस देन और इक्वल टू n लिखा है,
और मैंने कहा है क्या अगर मेरा n d से डिवाइड होता है तो काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है, यानी एक दफा वो डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं d प्लस इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। d प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, पहले वो 1 से डिवाइड करेगा, अगली दफा वो 2 से डिवाइड करेगा, फिर वो 3 से डिवाइड करेगा, फिर वो 4 से डिवाइड करेगा, फिर वो 5 से डिवाइड करेगा, चलता जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं आपको सामने कोड करता हूँ। तो मैं करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम d एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ लिखते हैं while, और यहाँ लिखते हैं d इज लेस देन और इक्वल टू n, और यहाँ जाके लिखते हैं एंटर, और यहाँ लिखते हैं अगर हमारा n जो हमें पास हुआ है वो अगर d से डिवाइड हो जाए, यानी कि d से मैं डिवाइड करूं यानी रिमाइंडर निकालूं और वो 0 आए, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें और 0 आ जाए तो क्या इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब क्या होता है अभिया? सर मैं तो बताइए एक मिनट अभिया, अगर मैं किसी भी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब क्या होता है अभिया? इसका मतलब क्या होता है ना, एग्जैक्टली यही तुमसे नहीं, कॉम्पोजिट नहीं होता, इसका मतलब है वो नंबर पूरा पूरा उसको डिवाइड करता है, यही मतलब है ना इसका, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं अगर मैं यहाँ पे इस d से इसको डिवाइड करता हूँ और मेरा आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है। अगर पूरा पूरा डिवाइड करे तो मैं क्या करता हूँ, काउंट में प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, इन उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, गौर से देखें, और यहाँ पर मैं करता हूँ d प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये मैंने इस प्राइम का कोड लिखा है, और मैं अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, यानी जब मैं वाइल लूप से बाहर आऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो काउंट की वैल्यू क्या हो तो इसका मतलब है ये प्राइम है। मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे बताऊं यहाँ क्या लिखूं, काउंट की वैल्यू क्या हो, यानी काउंट की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे आपने मुझे बताना है क्या हो, तो मैं रिटर्न करूंगा कि ये ट्रू है यानी ये प्राइम है, ठीक है। और एल्स में मैं रिटर्न करूंगा क्या, फॉल्स। जी बताएं मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, काउंट की वैल्यू क्या हो तो इसका मतलब है कि वो प्राइम। सर आराम से, सबर सबर सबर, बताएं जी, अब्दुल्ला आप बताएं। Abdullah, are you lost or your speaker, your microphone is creating a problem? Abdullah Azam, are you with me? Abdullah Azam? Sir, what was the question? The question was that this piece of code is actually trying to check whether n is divisible by d or not. If n is divisible by d, then it increments the count by 1. Now my question is the following. What should I check here? If count is double equal to 2. If count is double equal to 2, then I would say what? Then I would say that it is a prime number. Yes. Okay? And otherwise I will say it is not a prime number. Okay? You are Abdullah? Abdullah, you said almost correct. Almost correct. And I will tell you why I'm saying almost correct. Hassan, आपका भी यही आंसर था? हादी, आपका भी यही आंसर नहीं था? सर, नहीं सर। जैन, आपका क्या आंसर था? सर मेरा था, क्या सर था मेरा आपका? गलत था आपका गलत था? सर। लेस सर देन मुझे इक्वल टू, लग रहा सर मुझे लग रहा है सर लेस देन इक्वल टू। अभी हम सर- बात करते हैं इस पर, ठीक है जी जैन? सर मुझे लग रहा है कि इधर आना चाहिए, सर नॉट आना चाहिए या कोई वो स्लैश आना चाहिए ताकि वो क्यों स्लैश आना चाहिए, क्यों? अगर काउंट देखो बेटा, काउंट ने जो भी हमारा n आया है वो 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, और वो अपने आप से भी डिवाइड होता ही होता है, ठीक है। और क्योंकि हमने लूप लगाया d इज लेस देन और इक्वल टू n तक के लिए और शुरू किया 1 से, तो इसका मतलब वो अपने आप से भी चेक करता है और 1 से भी चेक करता है। तो इसका मतलब है कि अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 2 हो गई तो इसका मतलब उसे रिटर्न ट्रू करना चाहिए। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुई
तो इसका मतलब है वो प्राइम नहीं है। इसका मतलब है कोई और नंबर दरमियान में ऐसा है जिसने डिवाइड किया था। ये बात समझ आई? सो लेट्स चेक इट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने चेक करना है, यहां पे मैं आता हूं, यहां मैं चेक करता हूं, मैं करता हूं यहां पे प्रिंट, और यहां मैं करता हूं इज प्राइम, और मैं यहां आता हूं, यहां आके लिखता हूं लेट्स से 19 नहीं लिखते, 7 लिखते। 7 प्राइम है या नहीं है मुझे बताओ अबिया? प्राइम है। प्राइम है, तो हम इसे चेक करते हैं कि ये भाई आता ही नहीं आता। तो मैंने F10 प्रेस किया, ठीक है, ये तो हमने देख लिया था प्राइम में आगे। अब मैं इसके अंदर आ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, प्रेस यहाँ पे मैं F11 स्टेप इनटू करूंगा, ठीक है। तो मैंने F11 प्रेस किया, मैं इसके अंदर आ गया। यू कैन सी दैट एन में 7 आया हुआ है। आराम करते हैं, काउंट की वैल्यू 0 करते हैं, यू कैन सी दैट काउंट की वैल्यू 0 है। डी की वैल्यू 1 हुई, यानी पहली डिवीजन 1 से स्टार्ट करनी, और ऑफ कोर्स जो 7 नंबर है वो 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, तो उसका मतलब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू देखो 1 हो चुकी है। फिर डी प्लस इक्वल टू 1 हो गया। अब वो 2 से डिवीजन चेक करेगा 7। मुझे बताया 7 2 से डिवाइड होता है अबिया? नहीं होता, तो नहीं यहाँ सर। पे नहीं आएगा। अब बताएं डी प्लस इक्वल टू हो गया 1, तो डी की वैल्यू हो गई 3। अब वो 3 से डिवीजन चेक कर रहा है। मुझे बताया 3 से डिवीजन होती है 7 की? नो सर। नो। उसके बाद देखें डी प्लस इक्वल टू 4 हो गया। अब बताएं क्या 7 जो है नो वो सर। 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और आखिर में जब 7 होती है वैल्यू डी की, तो ये डिवाइड होता है, और इसकी वैल्यू जब वो बाहर आता है तो कितनी होती है? 2 होती है, जिसका मतलब है काउंट की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ये बात समझ आई? और ये देखिए इसने ट्रू रिटर्न किया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Abdullah, can you tell me what's the problem with this code? Abia, can you tell me what's the problem with this code? Ibrahim, can you tell me what's the problem with this code? अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। ये तो हमने ट्रू करना चेक की थी ना। अगर मैं यहाँ पे 8 कह दूं, 8 प्राइम है अबिया? बताएं। नो। चेक करते हैं 8 पे क्या आंसर देता है। तो हम यहाँ आए, और ओह ये देखेंगे 8 पे इसने फॉल्स ही कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। चेक भी कर लेते हैं, तो असल में होगा ये। तो हम F10 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने F11 में आया। एन की वैल्यू देखे 8 है, तो पहले डी से यानी 2 से डिवाइड होगा, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। डी की वैल्यू 2 हो गई। जब 2 पे आएगा तो क्योंकि 8 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर वो 3 से डिवाइड करता है, लेकिन 3 से वो डिवाइड नहीं कर सकता। फिर डी की वैल्यू 4 होती है, 4 से भी वो डिवाइड करता है। फिर 5 से वो डिवाइड जब करता है तो काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होता, और लेकिन काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी है। और फिर वो जाके 7 से भी ट्राई करता है, और फिर एंड में जाके वो 8 से जब वो ट्राई करता है तो काउंट की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होती है। तो इसका मतलब है इसकी क्या आ गए, काउंट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये बात समझ आ गई? तो क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो वो यहां आता है रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो इसका मतलब है वो कंपाउंड नंबर नहीं है, और इसने कह दिया कंपाउंड नंबर। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब कोई सारे मुझे बताएं कि मसला क्या है। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो क्या आंसर आना चाहिए? सर फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स। सर कुछ भी ना होना चाहिए क्योंकि 1 is not even prime, not nor is it. Yes, you are absolutely right. 1 is not a prime number. Okay, 1 is not a prime number. और ये इसको कहेगा प्राइम नंबर या नहीं? सर नहीं कहेगा। नहीं कहेगा। You are absolutely right, नहीं कहेगा। तो हम इसे चलाते हैं। यू कैन सी दैट के यहाँ पर इसने फॉल्स ही बताया। अच्छा, यहाँ पर ना ये ऐसे ऐसे आया हुआ है, इसको मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि ये की हो गया दो। ठीक है, इसके नीचे वाली चीजें जो है ना ऐसे यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि ये हमें तंग ना करें। ठीक है, तो कंट्रोल F5, you can see that के false आउटपुट आ रहा है। तो अब्दुल्ला, you were right.
अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं, सर हम ये एक मिनट मुझे बात बताएं, 2 पे आंसर क्या आना चाहिए? सर ट्रू आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए सर। ट्रू आएगा या नहीं आएगा मुझे बताएं। सर आएगा आना चाहिए, आएगा सर, आएगा। आएगा। आएगा आएगा और ये जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो 1 से डिवाइड ट्राई करेगा, 2 से ट्राई करेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, so you're right. So this code is perfect. Abdullah, I was wrong. ठीक है so this code is correct. अच्छा, अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, आखिरी सवाल अब कर रहे हैं। मैंने क्या करना है, मैंने डिवाइड करना है। अब गौर से मेरी बात सुनो, मैंने ये करना है, गौर से सुने। अब हम एक बात सुने प्लीज हादी, और बात सुने जैन, जैन और हादी, काइंडली आप अपनी बातें बात करें, ठीक है? काइंडली आप मेरे बात सुने, ठीक है? अच्छा, हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल ये लिखूं 18, लेट्स से 18 नहीं, हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 21। तो हम चाहते हैं कि ये आउटपुट करे, गौर से देखना, ये आउटपुट करे 3 × 7। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लिखें 42, तो ये आंसर दे क्या, 2 × 3 × 7। सिमिलरली अगर हम कहें 8, तो ये आउटपुट करे 2 × 2 यानी प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में उसका आंसर दे दूं। और अगर मैं कोई प्राइम नंबर ही कह दूं, इनपुट दे दूं, लेट्स से मैं 9 कह दूं, 9 नहीं सॉरी 11 कह दूं, ठीक है, तो ये सिर्फ कह दे 11। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? Yeah. तो ये प्रोग्राम लिखना है। मुझे सर तो ऐसा नहीं आई। ऐसा कर सकते क्या नहीं आई इब्राहिम? ऐसा इब्राहिम क्या ऐसा कर सकते हैं। एक मिनट बेटा, रुक जा आपने इब्राहिम, अभी कहा है, क्या समझ में नहीं आई जो आपने अभी कहा है, कि अगर एक आखिरी वाला 11 वाला, ये सारा ये सारा समझ नहीं आया? हमने ना बेसिकली प्रोग्राम लिखना है जो प्राइम फैक्टराइजेशन करे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन होती है कि किसी भी नंबर को मैथमेटिक्स में ना, हम किसी भी नंबर जो होता है उसको प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 21 कहूं, तो 21 की फैक्टराइजेशन होती है 3 × 7। ओके, तो तरीका ये होता है, पहले आप 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर आप 3 से ट्राई करते हैं, और अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर देते हैं, फिर दोबारा देखते हैं क्या दोबारा 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, क्योंकि मल्टीपल दफा डिवाइड हो सकता है। तो जब तक वो 3 से डिवाइड होता रहेगा, आप उसे डिवाइड करते रहेंगे। जब 3 से डिवीजन होना बंद हो जाएगी, तो फिर आप ट्राई करेंगे 7 से, 5 से कोई डिवीजन हो ही नहीं रही, तो फिर आप 7 ट्राई करेंगे। तब तक आप डिवाइड करते जाएंगे जब तक नंबर खत्म नहीं हो जाता। खत्म होने का मतलब क्या है? खत्म होने का मतलब क्या है? वो नंबर क्या ना रह जाए, 1 ना रह जाए। अब यू आर एब्सोल्युटली राइट, जब तक वो नंबर 1 ना रह जाए। ठीक है, तो ये काम करना है हमें। ठीक है, अच्छा आप देखता जाइएगा मैं क्या करता हूँ, देखने जाना मैंने क्या करना। मैं कहता हूँ क्या हूँ, अच्छा देखें, तो एक फंक्शन में लिख रहा हूँ, इसका नाम है डेफ प्रिंट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसको क्या पास होता है, एक एन पास होता है, और इस एन की सारी फैक्टराइजेशन वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? ऐसे करेगा, आप देखते जाइएगा। आपने मुझे गाइड करना है। मैं d इज इक्वल टू, गौर से देखते जाए, d इज इक्वल टू 2 से शुरू करता हूं। ठीक है, और गौर से देखना क्या करता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं while। ठीक है, सवाल पहला तो मेरा ये, यहां पे क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। और अब हम करेंगे क्या, अगर तो गौर से देखिएगा, मैं करूंगा अगर मेरा जो n है वो d से डिवाइड हो जाता है, कैसे चेक करेंगे, डबल इक्वल टू 0। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम एक काम करेंगे, काम ये करेंगे, सबसे पहले तो हम d डिस्प्ले कर देंगे, यानी कि प्रिंट d डिस्प्ले करेंगे, और यहां पे हम एंड इक्वल टू हम स्टार लगाएंगे। ठीक है, और इससे आउटपुट गलत आएगी, लेकिन सब्र करना आपका, अभी तक आपने सब्र करना है। ठीक है, यहाँ पे एंड इज इक्वल टू हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है,
और हम क्या करते हैं, साथ एक और काम भी करते हैं, इस n को n से वो डिवाइड, अब हमने एक फैक्टर निकाल लिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 21 है, 21 नहीं कहते, 42 कह देते हैं। तो 42 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवीजन पूरी पूरी हो गई है, ये नहीं देखे ना। 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 42 को, तो एक्चुअली तरीका ये होता है कि आपने अपने किताबों में शायद पढ़ा भी हो, तो हम करते ही हैं कि यहाँ पे 42 लिखते हैं, यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 21, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर 2 से अब डिवीजन नहीं हो सकती तो आप रुक जाते हैं, फिर हमें क्या ट्राई करते हैं, आप 3 से ट्राई करते हैं, 3 7 21 करते हैं, और फिर 3 से क्योंकि डिवाइड मजीद नहीं हो रहा तो आप आगे चलते हैं, फिर आप 5 से करने की कोशिश करते हैं, 5 से हो ही नहीं रहा, तो फिर आप 7 से करते हैं, ठीक है। तो 7 1 द ईयर, जैसे ही 1 आता है आप रुक जाते हैं, ठीक है, जैसे ही 1 आता है आप रुक जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मुझे बताना है कि कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आप क्या करते जाए, अब आपने आंसर देना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो आपने 2 काम करने होते हैं, एक तो ये कि आपने इस फैक्टर को जिससे वो डिवाइड हो गया था, ये आपने यहाँ पे डिस्प्ले करना होता है, वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। दूसरा काम आप ये करना होता है कि ये आपका पहले n था, अब आपने, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो आपको उस नंबर को उसके कोशेंट से रिप्लेस कर देना है। तो मुझे बताया मैं यहाँ पे क्या लिखूं, n क्या लिखूं, n क्या लिखूं, वो d से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सारे चैट में लिखें, चैट में लिखें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, एक्चुअली लिखना चाहिए डिवीजन इक्वल टू d, ताकि वो d से श्रिंक हो जाए। ये बात समझ आई, ठीक है। और एक और काम करना चाहिए, वो क्या भला, अब देखते जाइएगा यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पर हम कर देते हैं d प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन साथ हमें एक और काम भी करना चाहिए, d से हम डिवीजन अभी हम चेक कर रहे हैं ना, एक और मेरी बात गौर सुन, साथ हमें यहाँ पे एंड लगाना चाहिए, क्या भला, कि पहले हमें चेक करना चाहिए कि क्या ये d जिससे हम डिवीजन चेक कर रहे हैं क्या वो प्राइम भी है, क्योंकि अगर वो प्राइम है तब हमने डिवीजन चेक करनी है, वरना हमें डिवीजन, क्या हम 4 से डिवीजन चेक करते हैं, यहाँ पे जब हम डिवीजन क्या कर रहे होते हैं उसमें हम प्राइम नंबर्स के चेक करते हैं, नॉन प्राइम से तो हमने डिवीजन चेक ही नहीं करनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं और आगे यहाँ पे d प्लस इक्वल टू बनता है, ठीक है। तो ये कोड गलत है, पहली बात है, मुझे ये बताया ना यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें कब तक डिवीजन करनी चाहिए, जब क्या हो जाए, क्या हो जाए बताएं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, शाबाश, वेरी गुड, जब क्या 1 हो जाए तो हम रुक जाए, सर n n, तो यहाँ पे लिखना चाहिए जब तक हमारा n 1 नहीं होता, so n is not equal to 1, ये बात समझ, ठीक है, does it make sense? और यहाँ पर हम d प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखते जाते हैं, अभी एक दफा रुक जाओ, ठीक है। अभी हम इसको चलाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्प्ले करो, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले ही होनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि प्रिंट प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स, और मैं इसकी जगह लेता हूँ 18 का आंसर क्या होता है सकता है, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, यानी 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है मुझे बताए, चलिए पहले 21 की कर देते हैं, ठीक है। 21 की क्या होती है, 3 क्रॉस 7, ठीक है। इसका तो आंसर वो ठीक देगा, तो मैं 21 कर देता, लेकिन 18 का आंसर ठीक नहीं देगा, लेट मी शो यू क्यों। तो यहाँ है, ये हमने इस प्राइम और प्राइम फैक्टराइजेशन भी बन गया, और हम इसके अंदर जा रहे हैं, देखिए जी n में 21 पड़ा हुआ है, पहले इसने 2 चेक किया, क्योंकि 2 पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होता, तो हम 3 पे चले गए, अब 3 क्योंकि प्राइम भी है
और ये देखें हम मॉड्यूल बना चुके थे तो हमने यहाँ पे रीयूज कर लिया, क्योंकि वो प्राइम भी है और वो उसको डिवाइड भी करता है। तो ये इसके अंदर आएगा और देखें ये 3 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्ले हो गया, और क्या होगा, n की वैल्यू वो d से डिवाइड कर देता है। तो अब देखें n में क्या रह गया, बाकी 7 रह गया। बाय द वे हमें थोड़ी सी गलती की है, यहाँ पे डिवीजन आना चाहिए था, डबल डिवीजन आना चाहिए, क्योंकि वो 7.0 बता रहा है। तो यहाँ क्या बताना चाहिए था हमें, डबल डिवीजन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डबल डिवीजन कर लेते हैं, एक छोटी सी गलती हो गई है, तो हम दोबारा से चलाते हैं F10 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 और यहाँ पे हम F10 करके F11 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले इसने 2 से डिवीजन चेक की और 2 से डिवीजन की तो कुछ नहीं हुआ, 3 से डिवीजन चेक की, 3 से डिवीजन हो गई, 3 से इसने मल्टीप्लाई दिखा भी दिया और n की वैल्यू इसने श्रिंक की और यू कैन सी दैट उसमें 7 आ गया, और आना भी चाहिए था। फिर इसने d की वैल्यू 4 के लिए ट्राई की, लेकिन इसके अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, एक तो वो डिवाइड नहीं करता, दूसरी बात है कि वो प्राइम भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर आएगा नहीं। फिर 5 ट्राई करेगा, 5 में वो प्राइम तो है लेकिन वो डिवाइड नहीं करता 7 को, तो ये यहां से बाहर आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, 6 के लिए ट्राई करेगा, 6 को प्राइम नहीं है तो ट्राई नहीं करेगा। और फिर क्या होगा, d प्लस इक्वल टू 7 हुआ, 7 क्योंकि डिवाइड भी करता है और वो प्राइम भी है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। और क्या करेगा बेटा, ये देखें, ये इसने डिस्प्ले कर दिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 हो गया। जैसे ही हमारा n 1 होगा ये while लूप पे नहीं जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ओके, एक काम हमें करना चाहिए, क्योंकि इसको मैं चलाऊंगा ना तो आप देख सकते हैं आउटपुट ये आ रही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आ रही है। क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए बताया मुझे, तो एंड वाला मल्टीप्लाई खत्म करना चाहिए। एंड वाला मल्टीप्लाई में खत्म करना चाहिए। तो 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि आखिर में जाके आप एक काम करें, यहाँ पे जाके एम ही प्रिंट कर दें क्या, 1, ठीक है, और इस मल्टीप्लाई की जगह आप क्रॉस लिख दें, तो आपको पता है आखिर में 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीका ये है कि ये आप बता दें, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, लेकिन 1 क्योंकि प्राइम नहीं होता तो ये अच्छा नहीं लगता, तो ये है तो ठीक बात लेकिन इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो उसका तरीका ये है कि ये आप ना लिखें और यहाँ पे ये जो आपने एंड इज इक्वल टू ये लिखा है ना, ये ना लिखें, ठीक है, और यहां जाके क्या करें, यहाँ पे इफ लगाएं और उस इफ पे लिखें इफ n इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n 1 नहीं है तो आप ऐसा करें, प्रिंट कर दें, और प्रिंट में क्या करें, मतलब प्रिंट में यहां पे स्टार कर दें, ठीक है, और यहां पे लिखें एंड इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है, ठीक है। अगर n 1 नहीं है तो आप स्टार डिस्प्ले कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्प्ले होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर आ रहा है, ठीक है। एंड में जाके एम में प्रिंट कर दें और प्रिंट में आप जाके बेशक लिख दें बैकस्लैश n, ठीक, कंट्रोल F5 और ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आंसर ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये ठीक है तो 18 के लिए भी इसको ठीक आंसर आना चाहिए। 18 के लिए आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। और होगा ये कि ये लूप इन्फिनिट लूप पे फंस जाएगा। ये देखें, इसने आंसर दिया, ये देखें, इसको मैंने 18 किया, ये देखेंगे कि इन्फिनिट लूप पे फंस गया, देख रहे हैं आप, ये आगे चल नहीं रहा। यस और सर। इसकी बहुत बड़ी वजह है, इसकी वजह ये है कि अगर कोई नंबर गौर से देखें, अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल d से डिवाइड होता है, जैसे ये 2 से डिवाइड होता है, तो अभी दोबारा भी हमें 2 से ट्राई चेक करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है 18 ना हो 36 हो। तो 36 का आंसर क्या होता है, वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या कर रहा है, ये एक दफा डिवीजन चेक करता है और d में प्लस इक्वल टू 1 कर देता है। इसको प्लस इक्वल टू 1 सिर्फ तब करना चाहिए जब वो डिवीजन ना कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमने प्लस इक्वल टू 1 लिखा, ये हम यहां ना रखें, यहां पे हम लिखे अलिफ, अलिफ का मतलब है एल्स, या यहाँ पे एल्स कर देते हैं, यानी कि अगर डिवीजन नहीं हुई तो तुम प्लस इक्वल टू 1 करोगे, वरना तुम्हें अभी तक प्लस करने की जरूरत नहीं है, अभी तक तुम दोबारा डिवाइड चेक करो। ओके, टेक ए ब्रेक, आपका ये लेक्चर खत्म हो गया, आपने आराम से जाके चलाना है। अभी मैं इसे चलाऊंगा, देखिए 36 के लिए मेरा आंसर ठीक आएगा, ये देखिए
पहले ये इन्फिनिट लूप में फंस रहा था, अब देखिए मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। और मैं से 36 के लिए ट्राई करूंगा तो मेरा आंसर ये देखिए पूरी की पूरी इसकी फैक्टराइजेशन आंसर आ रही है, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी प्रिंट कर दी है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, आई एम सॉरी अबाउट दिस, कि मुझे थोड़ा रिव्यू करवाना था। अगली क्लास में हम इन फंक्शंस के ऊपर बहुत सारा काम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स एंड द लेक्चर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर किसी के सवाल है तो वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप द लेक्चर रिकॉर्डिंग।